What does it really take to lead in a world reshaped by AI, speed, and scale? At Z Funds, the answer to that is being defined with an initiative designed to help a new class of leaders emerge, empowered by technology, intelligence, and innovation. And to take a deeper insight into this exciting vision, I want to invite someone really special on the stage. Please join me in welcoming Ms. Vidhi Tuteja, co-founder of Z Funds. Let's give a huge round of applause and welcome Ms. Vidhi. So, first of all, I would like to, also welcome all of you. You've been welcomed 2-3 times, but I would like to welcome you all one more time. आप सब ने मनीष को सुना, राइट? आप सब ने सुना कि कैसे पर्सनलाइजेशन अलॉन्ग विद स्केल सीम्स लाइक द थिंग जो हम सबको करना चाहिए. Before we go into product, numbers, demos and all of that, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी और आपको 3 स्टोरीज बताऊँगी. आप सब फाउंडर समिट में आए, राइट? लाइक सो वी बिलीव दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ अ फाउंडर, and what better way to learn for founders than from successful businesses. All right, so 3 short stories about 3 successful businesses across the world, across times and across industries. Anyone can recognize this logo? Taj what? Taj Hotels, right. In 1903, Jamshedji Tata started or actually launched the Taj Palace in Bombay. Before that, the definition of luxury, जो luxury hotels होते थे वो पेरिस में रिट्स होता था या लंदन में सवॉय होता था और बहुत बड़े hotels होते थे, right? Like they were multi-room hotels, large lobbies, grand dining rooms. That was the definition of luxury. And then in 1903, Tata did something different. They opened Taj, which was 500 rooms. Again, the same thing, huge banquets. There were huge chandeliers, sea facing, एकदम luxury का top. But अगर आप वहाँ गए दूसरी बार तो डोरमैन आपका नाम याद रखेगा. अगर आप वहाँ गए तो रिसेप्शनिस्ट को आपकी वाइफ का बर्थडे याद होगा. आप चाय का ऑर्डर देने से पहले उनको पता है कि आपको आपकी चाय कैसे पसंद है. So there was a 500-room hotel that was serving hundreds of customers, which made people feel कि ये होटल मेरे लिए ही बना है, right? So that is an example of personalization at scale. Even 120 years later, people are still trying to get to that same level of service, of customization, of personalization, right? Fast forward 100 years later. Does anybody recognize this logo? Netflix. आप सब में से किसी ने ब्लॉकबस्टर नाम की कंपनी का नाम सुना है? वन पर्सन, राइट? नेटफ्लिक्स से पहले ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी थी. 9,000 फिजिकल स्टोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जो मूवी वर्ल्ड में रिलीज होती थी वो ब्लॉकबस्टर स्टोर्स में रिलीज होती थी. आप में से कोई भी उस स्टोर में जा सकता था. जो भी मूवी आपको देखनी है आप एक डीवीडी रेंट कर सकते थे, बट एवरी सिंगल पर्सन गॉट द सेम एक्सपीरियंस. यू वॉक इन टू अ स्टोर, यू पिक आउट अ मूवी, यहाँ न्यू रिलीजेस लगे हैं, यहाँ रोमांस, यहाँ थ्रिलर, और आप जाइए और अपनी मूवी पिक कीजिए. देन केम नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स ने ये सोचा कि अगर वो आपको बता पाएँ कि आपको कौन सी मूवी देखनी है तो क्या ये बेटर नहीं होगा? कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम सब लोग ढूंढने में कि अगला मूवी क्या देखें. टुडे 80% ऑफ द कंटेंट वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स इज नॉट सर्च्ड, इट्स recommended. सोचिए, today Blockbuster went bankrupt and Netflix is a $250 billion company. Okay, it's time for the last and third story. This might be a bit difficult. Spotify, great. Before Spotify, one of the biggest companies in the world, Apple, actually launched their iTunes. iTunes एक store था, almost एक e-commerce था of all songs. सारे सॉन्ग्स वहाँ अवेलेबल थे, आप सर्च कर सकते थे, यू हैड टू पे अ सब्सक्रिप्शन और आप सब कोई भी सॉन्ग सुन सकते थे. देन केम स्पॉटिफाई. एक फीचर लॉन्च किया, डिस्कवर वीकली. आपके लिए आपकी प्लेलिस्ट बना करके देते थे. दे लेफ्ट iTunes फार बिहाइंड. टुडे आज आप में से किसी के भी पास iTunes है? राइट? नोबडी. दैट, माई फ्रेंड्स, इज द पावर ऑफ पर्सनलाइजेशन एट स्केल. Era defining
generational defining companies, businesses are made when you combine personalization with scale. Not one or the other, but together. Now coming to our industry. I'll move a little bit to the side so that everybody can see this. In our industry, the opportunity for this personalization has widened massively. In the last 10 years, अगर आप देखेंगे, mutual fund के जो folios हैं, they have grown from 4 crore to almost 20 crore, 6 times, and our mutual fund distributors have grown from 75,000 to 1.8 lakh times, only 2.3x times. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सब लोग अब 3 गुना ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं. आप यू लुक एट दिस एज अ प्रॉब्लम, राइट? लाइक कि लोग बढ़ रहे हैं पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है. दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी. This is our opportunity because we now get 3x more customers per distributor. How will we actually get to this? अभी तक म्यूचुअल फंड्स में 3 एराज हो गए हैं. आप देखेंगे म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट हुआ था तो पर्सनलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ था. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स, actual people who knew the people who were investing with them, सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही आता था. द नेक्स्ट 10 years वो द एज ऑफ स्केल. यहाँ पे हमारे DIY ऐप्स आए और पर्सनलाइजेशन गायब हो गया. एक सिंपल ई-कॉमर्स की तरह आप कोई भी फंड सर्च कीजिए, सॉर्ट कीजिए, फिल्टर कीजिए, ये वाला फ्लेवर, वो वाला कलर, जो आपको चाहिए वो म्यूचुअल फंड आपको मिल जाता था, राइट? So you had an era of personalization and then you had an era of scale. The next 10 years will belong to someone who will marry these two. It will belong to you. Okay? अब ये belong to you तो हो जाएगा, but उसके लिए आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा, right? Customers आपके 6 गुना बढ़ गए हैं. हर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अब 3 गुना ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस करना है. ये आप अभी भी 10 साल पुराने टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं. हम सबको कैचअप करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं, राइट? वी लिसन्ड टू 16 लाख मिनट्स ऑफ कॉल रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम ईच ऑफ यू. आप सबके पास एक रिलेशनशिप मैनेजर है? आप सब अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करते हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसको अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करना होता है. Nobody? Good, thank you. आप सब जब अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करते हैं, we record those calls. Then we analyze them, we hear them. हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को चाहिए क्या, ऐसा क्या किया जाए जिससे वो लोग सक्सेसफुल बने. तो आफ्टर एनालाइजिंग 16 लाख मिनट्स ऑफ कॉल्स वी अंडरस्टूड कि सबको सिर्फ 4 ही चीज़ें चाहिए. पहला, आप अगर किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाना चाहते. आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर को दिखा पाएँ व्हाट आर दे लूजिंग विद देयर करंट ऐप, विद देयर करंट ब्रोकर एंड व्हाट दे कैन गेन विद यू. करेक्ट? एनीबडी हु डिसएग्रीज? ओके. नंबर 2, अगर आप कस्टमर्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वांट्स टू बी प्रोएक्टिव. आप वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे उस कस्टमर का जो इन्वेस्टमेंट आउटकम है वो बढ़े, उसका रिटर्न बढ़े. नंबर 3, आप सब लोग उस कस्टमर को पर्सनली जानते हैं. यू हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद दैट कस्टमर एंड यू वांट टू डीपन दैट. आप चाहते हैं कि ये पर्सनल रिलेशनशिप अगले 5, 6, 10 साल तक चले, ताकि उसी तरह जैसे आपका रिलेशनशिप कंपाउंड हो वैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड हो. एंड देन फाइनली, अगर मार्केट्स में कुछ ऊपर नीचे होता है, जैसे आशीष जी ने बताया, ही गेव अस अ होल लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? तो मुझे पता हो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे कस्टमर्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं अराउंड दैट, मैं उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाऊँ. एक्चुअली वील टेक इट अ स्टेप फर्दर, राइट? वो क्यों मुझसे पूछेंगे, हम उन्हें बताएंगे. अगर कोई ऐसी न्यूज़ होती है मार्केट में, उनके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट है, जिस फंड में इम्पैक्ट है, वो फंड में उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया था, कोई गोल था, कोई विजन था, आप उनसे उनकी भाषा में बात करेंगे, तब उनको फाइनेंशियल न्यूज़ का सेंस समझ आएगा. These are the 4 things that any wealth manager, mutual fund distributor needs to be successful. Incidentally, आप कभी ऐसा सोचिए कि आपके कस्टमर को आपसे क्या चाहिए, आपके इन्वेस्टर्स को आपसे क्या चाहिए. इन 4 चीज़ के अलावा कुछ सोच पा रहे हैं? नहीं, राइट? This is what you can give and should give, and these are the 4 things that your customers want from you. This is what we've developed. We've developed Ziva, AI for very, very serious wealth managers.
Thank you. The idea is, the want is, the need of the hour is कि आप सब personalization कर पाएँ at scale. आप सब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे 50 लोगों की टीम हो. आप जैसे कोई बहुत ही बड़ा वेल्थ मैनेजर देखें, उनके पास 2 एनालिस्ट, एक रिसर्च, एक कस्टमर सपोर्ट, सारी बड़ी टीम होती है, राइट? आप सबके पास Z funds है, बट वाई डोंट वी टेक दिस 10x मोर? Why don't you have someone available 24/7 with you? What we'll now do is we'll give you a demo of Ziva, and I'll show you in real time how that looks. Yes? Okay. So this is how your Ziva interface looks. आज इस summit में जो भी लोग आए हैं उन सब के लिए आपके apps में और desktop apps webs में ये Ziva का access live है. आप सब लोग इसको अपने लिए भी test out कर सकते हैं. हाय जीवा, मुझे मेरा बिजनेस ओवरव्यू बता दो. यहाँ आपका बिजनेस ओवरव्यू है. करंट AUM 41 करोड़ 45 लाख रुपीस है. 3 रीसेंट फेल्ड ट्रांजैक्शंस और 3 ओपन लीड्स हैं. पोर्टफोलियो एनालिसिस करूँ या किसी क्लाइंट का चेक करूँ? हाँ, मुझे मेरे क्लाइंट रॉयल भाटी का पोर्टफोलियो एनालाइज करके बताओ, क्या गैप्स हैं? So it opens up a full analysis. आप देखिए, रॉयल भारती के पोर्टफोलियो का समरी स्क्रीन पर रेडी है. पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के लिए ओपन फुल एनालिसिस बटन दबा दें. डीपर एनालिसिस चाहिए? So I'll just pause it for a minute and actually show you the analysis. क्या होता है? मोस्ट ऑफ आर कस्टमर्स जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करने आते हैं, कुछ पार्ट उनका इन्वेस्टमेंट हमारे साथ होता है और कुछ पार्ट उनका एक्सटर्नल फंड्स में होता है, यानी किसी और ब्रोकर या किसी और ऐप के साथ. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका पोर्टफोलियो एनालाइज कर पाएँ एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स एंड एज पर जो उनके गोल्स हैं, उनके हिसाब से हम उन्हें बता पाएँ कि कौन से उनके फंड सही हैं. सो व्हाट वीव डन इज वीव क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो स्कोरिंग मैकेनिज्म. दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. कस्टमर का पोर्टफोलियो अच्छा है, ख़राब है, ये बोलना आसान है. पोर्टफोलियो को स्कोर करना ज़रूरी है. स्कोरिंग के लिए हमने 7 अलग अलग मैकेनिज़म्स को चूज़ किया है. सिर्फ रिटर्न्स नहीं, कंसिस्टेंसी, रिस्क एडजस्टेड रेशियो, कैप्चर रेशियो एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट इंश्योर कि जब आपका कस्टमर आपके साथ इन्वेस्ट करे तो उसका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, नॉट ओनली कि उसका रिटर्न आए जा रहा है. मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक कस्टमर है, हमने उसका एक फंड में पैसा लगाया था, जहाँ एक साल में वो +30% देता है, सेकेंड ईयर में -25, अगले साल में वापस +15, करेक्ट? और एक फंड है जो हर साल लगातार 15-20% दिए जा रहा है. दैट्स द डिफरेंस. टेक्निकली एट द एंड ऑफ द पीरियड हो सकता है कि उसका पैसा सेम बनाओ, हो सकता है कि उसका रिटर्न सेम बनाओ, बट कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर कहाँ होगा, कहाँ वो आपसे ज़्यादा खुश होगा? दैट इज़ कंसिस्टेंसी. वीव टेकन केयर ऑफ कैप्चर स्कोर. कैप्चर स्कोर क्या होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट का कितना पार्ट कैप्चर कर पाता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो कितना स्टेबल रहता है. Along with this, there's a whole lot of scores, right? And I would love to go into them technically at the Ziva Experience Center, which I'll talk to you about. But we've gone into every single score. We've taken हर म्यूचुअल फंड जिसमें कस्टमर ने इन्वेस्ट किया है और उसको हमने एक वेटेड स्कोर दिया है. इसके अलावा आप अपने कस्टमर को पोर्टफोलियो वर्सेस बेंचमार्क भी दिखा सकते हैं. उनका ब्लेंडेड पोर्टफोलियो वर्सेस ब्लेंडेड बेंचमार्क में कितना डिफरेंस आ रहा है, उनके अगर कोई मिस्ड गेन्स हैं तो कितने हैं. आप एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन दे सकते हैं अक्रॉस गुड फंड्स, एक्सेलेंट फंड्स, एवरेज, पुअर. आप बता सकते हैं कि एक्चुअली दीज आर द फंड्स जहां आपको पैसा नहीं डालना चाहिए. यू शुड बी मूविंग आउट ऑफ दीज फंड्स. अब आप लोग पूछेंगे ये फंड्स कहाँ से चूज़ हो रहे हैं, हाउ आर यू गाइज चूजिंग दीज फंड्स, गुड बैड. हमने ऊपर स्कोर्स की बात की थी. वी हैड डिस्कस्ड कि हमारा स्कोरिंग मैकेनिज्म क्या है. दैट टेक्स केयर ऑफ द ओवरऑल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, द रिटर्न्स एंड द क्वालिटी ऑफ द फंड. दैट इज़ हाउ वीव चोजन दिस. ये फंड्स हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं ताकि आपके कस्टमर्स के पोर्टफोलियोज विद रियल टाइम्स अलाइंड रहें. After that, a very important point for DIY investors, portfolio diversification. This is very important. ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो लोग YouTube देख करके 20-25 फंड इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि एक फ्लेवर ये है, दूसरा फ्लेवर ये है, जैसा मैंने आपको बताया, राइट? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू टेल आवर कस्टमर्स कि अगर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना ही है तो 20 फंड आपका रिटर्न एक्चुअली कम करेगा. योर आइडियल रेंज इज 6 to 8 फंड्स. प्लीज़ कंसोलिडेट देम. ओके, so you can talk to them about portfolio concentration.
यू कैन टॉक टू देम अबाउट ओवरलैप, किसी भी दो म्यूचुअल फंड में कितना ओवरलैप है, किस स्टॉक्स का ओवरलैप है, ऑल ऑफ दैट इज़ अवेलेबल. यू कैन सी कितना मार्केट कैप है बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, डेट में आपकी बॉन्ड रेटिंग क्या है, हर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, एंड ऑल ऑफ योर स्टॉक्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ देयर. ऑलराइट, नाउ गोइंग बैक टू द डेमो, दैट्स अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ, मुझे 10,000 रुपये की SIP करनी है. क्या आप मुझे एक प्रपोजल बना के दे सकते हो? अगर आप महीने के 20,000 रुपये SIP 10 साल के लिए करेंगी तो 12% एनुअल रिटर्न पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख का होगा, जो बढ़कर लगभग 30,30,000 रुपये हो जाएगा. इससे आपको ज्ञापन के लिए एक अच्छा प्रपोजल मिल जाएगा. क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज फंड सजेस्ट करवा लूँ? हाँ, कौन से फंड सही रहेंगे? स्क्रीन पर कुछ क्विक सवाल आ गए हैं, उनका जवाब दीजिए ताकि मैं आपके क्लाइंट के लिए सही फंड सजेस्ट कर सकूं. स्क्रीन पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन कार्ड दिख रहा है. क्या आप प्रोसीड करना चाहती हैं या कोई सवाल है? ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, विच इज़ क्या कौन सा म्यूचुअल फंड सही है. यहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स, या जहीं पे भी आप यूट्यूब किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, द आंसर इमीडिएटली स्टार्ट्स विद फंड्स. आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए 10,000 रुपये की SIP के लिए इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कंप्लीट क्वेश्चन. आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन ही इतनी नहीं दी है कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ. करेक्ट, विच इज़ वाई वी डेवलप्ड अ बैक एंड एल्गोरिदम जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका गोल कितना दूर है, आपकी एज क्या है, आप एक्चुअली कितना रिस्क ले सकते हैं, बेसिस विच यू गेट द करेक्ट रिकमेंडेशन फॉर योर कस्टमर्स. दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विन एवरी क्लाइंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे और आपके पास उस फंड, उस प्रपोजल, उस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए सब कुछ अवेलेबल नहीं है. राइट फ्रॉम उनकी कितनी सिप होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन था, जो भी आपने इनपुट किया था, उसके हिसाब से हमने आपको एक ये भी दिया है, आपके जो एक टारगेट एसेट एलोकेशन है वो कितना होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ फार द कस्टमर्स एंड गोल इज. This is an interesting part. I like to focus on this, although this is just text, but I like to focus on this. What can you expect from your Z Funds expert? आपको ongoing portfolio management देंगे, regular update देंगे और ensure करेंगे कि आपका goal जहाँ पे भी जाना है उसके साथ आप aligned हैं. What's interesting is what should we expect from you? As wealth managers, हमें अपने customers से क्या expect करना चाहिए? अगर आपके फाइनेंशियल गोल, इनकम या रिस्क में कोई भी चेंज हो रहा है तो अपने वेल्थ मैनेजर को बताइए. अगर आपके कैश फ्लो में कोई चेंज हो रहा है तो अपने वेल्थ मैनेजर को बताइए. जब हम आपको हर क्वार्टर ये पोर्टफोलियो भेजेंगे तो प्लीज़ एक्नॉलेज कीजिए और बताइए कि आपको सब कुछ सही लग रहा है. दीज आर डिस्कशन पॉइंट्स दैट यू शुड बी हैविंग विद योर कस्टमर्स. राइट, उसके नीचे वी हैव अ सिंपल फंड एलोकेशन. दिस फंड एलोकेशन का जो हमारा लॉजिक था वो मैंने आपको बताया है. इसके आगे एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्टेड वेल्थ एक्यूमुलेशन ग्राफ है. आप देख सकते हैं कस्टमर ने 10 साल तक का गोल बनाया था जिसमें सिर्फ 23 लाख बनते हैं. वहीं अगर वो उसको 10 साल और एक्सटेंड कर लेता है तो उसका 76 लाख बन जाता है. दीज आर गुड कॉन्वर्सेशंस टू हैव. आपको नीचे उसका एक पूरा मैथमेटिकल टेबल मिलता है. अंडरलाइन कॉम्पोजिशन ऑफ कैश, इक्विटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स लाइक वी सेड. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. आप सबके साथ भी एक क्वेश्चन आता होगा, राइट? वाई दीज फंड्स? वाई हैव यू पिक्ड दीज फंड्स फॉर मी? वीव इंक्लूडेड अ फैक्ट शीट and our methodology of why we select these funds. So for example, you can see there is an Edelweiss mid-cap fund. What is their performance score? What is their capture score? What is their valuation? What is their category rank? What is their 1-3-5 year return? And a one-liner about why this is in your portfolio. This makes it very easy to have conversations. जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं, अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उस कस्टमर का स्केल क्या है. चाहे आप किसी का 10,000 रुपये का SIP ला रहे हो या 4 लाख रुपये का SIP ला रहे हो, कॉन्वर्सेशंस इन्हीं लाइन पे चलती हैं. और अब आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं उस कस्टमर को अपने पास कन्वर्ट करने के लिए, राइट? ओके, लेट्स ट्राई अ फंड कंपैरिजन.
काफ़ी बार होता है कि मैंने आपको ये प्रपोजल दिया, बट इनमें ये जो फंड है, क्या हम इसको दूसरे फंड से कंपेयर करके देख सकते हैं? सो लेट्स सी। मुझे HDFC लार्ज कैप फंड और SBI लार्ज कैप फंड में कंपैरिजन करके बताइए। HDFC लार्ज कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन रेगुलर प्लान ने 3 साल में 13.32% रिटर्न दिया और SBI लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 12.84%. Right, this will go on for some time, right? Like, but I'll just give you an example. You can see the Z fund score of each and every fund. आप देख सकते हैं उनका 1-3-5 ईयर पीरियड क्या है। उसके बाद जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे उसके अंडर में ईच फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और इस कैटेगरी में टॉप पिक क्या है। आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉक टू जीवा, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड। आप ऐसा सोचिए कि जो भी इंडिया के टॉप वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, जो भी 1000-2000 करोड़ मैनेज करते हैं, क्या उनको ये सब याद रहता है? दे जस्ट हैव अ टीम जिसको वो बोल देते हैं कि सुनो ये मेरे लिए बना करके ले आओ। अब वो पावर आपके पास है, जस्ट एट द टैप एंड इन योर पॉकेट, राइट? वन मोर थिंग आई लाइक टू शो यू ऑल। हमने ऊपर एक प्रपोजल बनाया था, राइट? ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट इट अगेन। मुझे 10,000 रुपये SIP के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड कर दीजिए। पर कुछ क्विक सवाल आ गए हैं, उनका जवाब दीजिए ताकि मैं आपके लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड कर सकूं। ये सिर्फ 1 मिनट लेगा। आपका पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन कार्ड स्क्रीन ये सेम है जैसे हमें पहले आया था। अब इसके नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बटन है जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा था, जिसका नाम है प्रैक्टिस मॉक कॉल। अब ये तो अनलकीली आई एम अमंग्स द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड म्यूचुअल फंड distributors and wealth managers in Z funds, but imagine someone new who's in the industry, someone who's still building up confidence, they can do a practice meeting with the AI. ओके, हाय, वो आपसे कल फ़ोन पे बात हुई थी म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसी सिलसिले में बात करने आई थी मैं। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? हाँ भाई, बिल्कुल सही समय है। आइए बैठिए, चाय लूँगा। कल वाली बात ही तो करनी है ना, म्यूचुअल फंड्स की। बताइए क्या प्लान है? आपका एक्चुअली SIP स्टार्ट करने का प्लान था, पर उससे पहले थोड़ा सा समझना चाहती हूँ आपके गोल्स के बारे में, जानना चाहती हूँ कि आप SIP स्टार्ट करने का किस लिए सोच रहे हैं। कोई आपका इज़ देयर अ चाइल्ड जिसके एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हैं या अपनी रिटायरमेंट के लिए? अरे SIP क्या होता है पहले तो बताइए। मैं तो IT में काम करता हूँ, बच्चे की पढ़ाई और थोड़ी रिटायरमेंट के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन कोई गोल सेट नहीं किया अभी। कौन से फंड्स रेकमेंड करेंगे आप? मॉडरेट रिस्क वाले? बिल्कुल। SIP एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है म्यूचुअल फंड्स में, जहां मंथली आपके बैंक से कुछ पैसे कट जाते हैं और वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये कॉल मैं कर सकती हूँ, बट मेरा सेल्स पिच आप लोगों से काफ़ी ख़राब है, राइट? इसके बाद जो होता है, दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग। ये आपकी पूरी कॉल को एनालाइज करता है। एवरी सिंगल टर्न इज़ एनालाइज्ड। आपको बताया जाता है कि व्हाट इज़ एन आइडियल वे। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, बट मोस्टली अगर कोई रेगुलेटरी ब्रीच है, जैसे कभी हमने कह दिया कि म्यूचुअल फंड गारंटीड है, क्या हमने उसके गोल के बारे में सही से पूछा, क्या हमने एक रैपो बिल्डिंग की। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टूल एंड यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज यू लाइक। मैंने एक सिंपल यूज़ केस लिया है, आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं। आप अपना एक्चुअल यूज़ केस ले सकते हैं कि यार मेरे पास एक बिजनेसमैन है, 4 उसके पास वेल्थ मैनेजर है, बहुत ही मुश्किल है उसको कन्वर्ट करना। यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस विद दिस, take your feedback and see and make it better. So every single time you go to a customer, you can be super well prepared. Okay? Now comes the important part, I think, for people in this room at least. आप सब में से काफ़ी लोग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, राइट? आई टॉक्ड अबाउट कि आपका कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल लेवल पे है और आप चाहते हैं कि वो 10-20 साल तक कंपाउंड हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप बिल्डिंग? एनीबडी?
Regular communication. What else? कस्टमर सबसे ज़्यादा कब खुश होता है और सबसे ज़्यादा कब दुखी होता है हमसे? Anybody? चाय पीने से, सर. करेक्ट सर. बीइंग प्रोएक्टिव, उनसे बात करने से, उनसे कम्युनिकेट करने से. ऑल्सो आप सबने देखा होगा, अगर कस्टमर ने हमें कुछ बोला है और हम भूल गए हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है, राइट? दिस टेक्स केयर ऑफ दैट. आप किसी कस्टमर के साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं, गूगल मीटिंग कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, बस ये रिकॉर्ड का बटन दबा दीजिए. आपकी कंप्लीट मीटिंग रिकॉर्ड होती है, ऑब्वियसली कीपिंग प्रिवेसी इन चेक. इसके बाद आपको दिखता है कि ये मीटिंग किस बारे में थी, आपने उनसे क्या बात की है. जैसे एक एग्जांपल है कस्टमर के साथ मीटिंग का, जहाँ पे कस्टमर बोल रहा है कि यार मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए थे, सोच रहा था इंडिया में पढ़ेगा, पर अब बोल रहा है कि लंदन जाएगा मैथमेटिक्स पढ़ने, तो अब गोल चेंज करना पड़ेगा. सो यू हैव एक्शन आइटम्स कि आपको उनका डी रिस्क करना है, इक्विटी से क्या डिप्लॉय करना है, आपके डिस्कशन पॉइंट्स क्या रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल फॉर यू, राइट? दैट इज a part of Ziva. You can try this in the experience center. You can speak in Tamil, Kannada, Gujarati, any language that you want, and Ziva will respond in the language that you want. All right, so you can try it on the experience center. That was a little bit from my side. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.